A conical tent 10 meter high and radius of its base is 24 meters. Find the slant height of the conical tent. Find the cost if 1 square meter is equal to rupees 70 for the sake of making the canvas. So see here what is given to you. आपको height दिया है, आपको radius दिया है. You are asked to find out slant height. You are asked to find out L. Now children, you know the formula to calculate L. L is equal to under root h square plus r square. The length of the slant height is equal to under root h square plus r square. This if you simplify children, what is that you are going to get is h means how much? Height is 10 square and radius is 24 square. So this if you calculate, it will be equal to L is equal to 100 plus 576, and this if you simplify, it will be equal to square root of 676, and that is equal to how much? 26 meters. So children, from the slant height we have calculated, from the height and radius we have calculated the slant height using the formula of L square is equal to h square plus r square. Now we want to make the tent. We want to make the tent. To make the tent, what you should calculate is, you have to calculate the curved surface area. So you know the formula to calculate the curved surface area. The formula to calculate the curved surface area is pi r L. Pi is equal to 22 by 7, radius is equal to 24, and slant height is equal to 26. So children, one thing you must do is, you need not calculate the value of curved surface area. Many times what children do is, they waste their time in calculating the curved surface area. Nowhere in the problem you are asked to find out the curved surface area. The question asked to you is what is the cost? The first question asked to you is what is the slant height, and slant height already you have calculated, it's equal to 26 meters. Now you need to calculate the cost. So what is the rate here? Rate is equal to rupees 70 per square meter. यानी इसका मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर मीटर अगर मुझे कपड़ा लेना है कैनवस का तो 70 रुपये मुझे देने पड़ेंगे. तो अगर इतना है तो कितना देना पड़ेगा? तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट इफ यू वांट, that is equal to curved surface area multiplied by rate. Curved surface area multiplied by rate. What is the curved surface area? Curved surface area is 22 by 7 into 24 into 26 into rate is how much? Rate is 70. This if you try to calculate, 7 ones are 7, 7 tens are 70. Now what else is there is 22 multiplied by 22. I can say this 22 into 10 is 220 multiplied by, if you remember फन मैथ्स के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर यूनिट डिजिट को मिलाकर 10 होता है और 10 डिजिट सेम होता है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था. क्या बताया था? 4 इंटू 6 कीजिए 24. क्या करना है आपको? 4 इंटू 6 कीजिए 24, और 2 के बाद अगला नंबर आता है 3. 2 के बाद अगला नंबर आता है 3. सो 2 इंटू 3 कीजिए 6. क्या करना है? 6 प्लस 4 10 होता है, इसलिए 6 इंटू 4 24 करना है, और 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, इसलिए 2 इंटू 3 होगा 6. देखिए इंटू कितना आसान मैंने कर दिया. अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये 0 होगा एज इट इज. 22 का टेबल आपको करना है याद. 22 इंटू 4 इज 88, कैरी 8. 22 इंटू 4 इज 88, कैरी 8. 22 इंटू 4 2 इज 44, 44 प्लस 8 इज 52. फिर होगा कैरी 5. तो 22 इंटू 6 इज 132, 132 plus 5 is 137. So that means what? The total cost
फॉर मेकिंग द कैनवस इज ₹1,37,280. टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग कैनवस, for making tent from the canvas, tent is rupees how much? 1,37,280. तो बच्चों एक बात आपने देख लिया होगा कि कितना बड़ा इंटू था, इसको हमने कितना आसान किया. क्या किया हमने, फिर से एक बार बता दो. 6 × 4 24 होगा, यूनिट डिजिट सेम है इसलिए 2 × 3 6 होगा. तो टोटल कॉस्ट होगा 1,37,280. नेक्स्ट है what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height कितना दिया आपको 8 मीटर एंड रेडियस आपको दिया है 6 मीटर. assuming that stitching and waist is 20 सेंटीमीटर. देखिए मुझे एक टेंट बनाने का है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है कि कर्ड सरफेस उसको कितना कपड़ा लगेगा. और देखिए जब भी आप कपड़ा देते हो टेलर के पास तो कपड़ा क्या होता है, काटने में सीने में वेस्ट होता है. तो वेस्ट 20 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो आपको ये बताना है कि कितना कपड़ा लगेगा, कितनी लंबाई लगेगा. तो पहला तो हम एक काम करेंगे, आपको दिया क्या है यहाँ पर, लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, हाइट आपको दिया है, हाइट इज हाउ मच 6 मीटर. रेडियस आपको दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज 6 मीटर्स और हाइट आपको दिया है 8 मीटर्स. तो सबसे पहला काम हम एक काम करेंगे, L = √h² + r², इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. तो उसको यूज़ करने से क्या होगा सर, उसको यूज़ करने से ये होगा कि h² होगा 64 और 6² होगा 36, यानी L = 64 + 36 होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 मीटर. तो आप सोच रहे होंगे सर आपको L तो ढूंढने के लिए कहा ही नहीं, आपने क्यों ढूंढा, इसलिए बिकॉज हमको ढूंढने के लिए कहा है कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l, और पाई की वैल्यू इस बार 3.14 लेने के लिए कहा है. तो बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं सर 3.14 लेने के लिए कहा है, प्रॉब्लम में भी डिफिकल्ट. नो, टू हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम 3.14 लेने के लिए कहा जाता है. उदाहरण के तौर पे यहाँ पर अगर आप πr_l लोगे तो क्या फायदा होगा, आप देखिए पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू है 6, रेडियस इज हाउ मच 6 है, और आपको स्लैंट हाइट है आपका कितना 10, तो ये 10 होगा यहाँ पर. तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो ये होगा 31.4, 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट आगे होगा इंटू 6, ये हो गया आपका कर्ड सरफेस एरिया, आपका कर्ड सरफेस एरिया. अब आपको जब आप दुकान में जाते हो तो कपड़ा आपको एक रेक्टेंगल शेप में मिलता है, तो आपको विड्थ उन्होंने दे रखा है, विड्थ आपको कितना दिया है, यानी दुकान में जैसे आप जाओगे कपड़ा मांगते हो, कपड़ा मांगने के बाद विड्थ आप बता नहीं सकते हो, विड्थ इज फिक्स्ड, लेंथ फर्क हो जाता है. तो वो लेंथ कितना होगा, यानी एरिया आपको कितना चाहिए 3.14 इंटू 6, यानी ये जो कपड़ा आप टेंट सीने वाले हो उसका आकार दुकान में ऐसी होगा, दुकान में उसका आकार कैसा होगा, ये 3 मीटर वाइड है, तो लेंथ आपको कितना पूछा है और आपको कितना चाहिए, यहाँ पर इतना चाहिए, कितना 3.14 इंटू 6, इतना अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है. तो देखिए आप टोटल क्लॉथ अगर आपको चाहिए, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू वेस्टेज भी आपको लेना है वहां पर, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 31.4 इंटू 6 प्लस ये आपका वेस्टेज, ये प्लस आपका वेस्टेज. तो देखिए यहाँ पर वेस्टेज बाद में हम प्लस करेंगे उसको, पहले तो एक काम करेंगे, वेस्टेज कितना है, वेस्टेज 20 सेंटीमीटर है, वेस्टेज कितना है 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 0.2.
2 मीटर होगा। यानी आपको ये वेस्टेज भी उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो वेस्टेज आप जोड़ दोगे तो 6 × 4 कितना होता है 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 + 2 कितना होगा 8 होगा, फिर 6 3 जा 18 होगा। तो कितना आया आपको 188.4 मीटर्स आया। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 + 2 is how much 8 and then 6 3 जा 18। तो yeah 18 this much meters। 6 4 जा 24, carry 2, 6 1 जा 6 + 1 is 8 and then 6 3 जा 18। अभी आपको उसमें वेस्टेज भी जोड़ना है, वेस्टेज भी उसके अंदर आएगा। इतना मुझे चाहिए, मगर इतना चाहिए नहीं, उसके साथ वेस्ट भी आ जाएगा, भले तुमको चाहे या ना चाहे। तो यहाँ पर ये क्या होगा 0.2 उसके अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 188.6 मीटर, इतना तुम्हारा चाहिए तुमको। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 188.6 है, जिसमें विड्थ आपको दिया है 3, 188.6। तो इसको आप L इज इक्वल टू करोगे तो 188.6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको क्योंकि 3 मीटर वाइड आपको दिया है तो ये होगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैरी 2 बचा 26, 3 8 जा 24, यानी 62.8 मीटर्स जो है वो आपको कपड़ा लगेगा। यानी अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे बोल सकते हो कि 63 मीटर्स तक आपको कपड़ा लगेगा, 63 मीटर्स तक आपको कपड़ा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गिव द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ। तो यहां पर एक बात आपने देखा होगा कि 3.14 लेने की वजह से हमको फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर 22/7 लेते तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its CSA at the rate of ₹210 per 100 square meter. एक टूम है, यानी एक समाधि है, उसके ऊपर आपको क्या करना है व्हाइट वॉश, यानी चूना लगाना है, जस्ट व्हाइट वॉश करना है। तो यू नो व्हाइट वॉशिंग हमेशा कर्ड सरफेस एरिया के ऊपर होता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टूम ढूंढना पड़ेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ आपको डायमीटर दिया है, पहले तो डायमीटर से रेडियस ढूंढिए आप। डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर, तो रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7 मीटर्स। ये हो गया आपका रेडियस। अब आपको कर्ड सरफेस एरिया ढूंढना है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr/l। तो पाई की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, पाई इज 22/7, रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस इज 7, और स्लैंट हाइट आपको कितना दिया है 25 दिया है। तो ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 22, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50 प्लस 5 इज 550 स्क्वायर मीटर। What is this 550 square meter? 550 square meter is the curved surface area of the tomb to be whitewashed. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट ढूंढना है आपको। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको ढूंढना है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय रेट। सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट इज इक्वल टू 550। What is the rate? 210 per 100 square meter. So 210 per 100 square meter. So this 0 cancels with 0, 0 cancels with 0. Now what remains here is 21 into 5. 21 into 5 is 105. 21 into 5 is 105. Carry 10. Carry 10. So again 21 into 5,
21 into 5 is 105. So if I take 105 here, then what I'll get is 115. So what I'll get here finally is 1155. That means 1155 will be the cost of whitewashing the tomb at the rate of rupees 210 per 100 square meter. यानी टूम को व्हाइट वॉश करना भी है तो कर्व सरफेस एरिया ढूंढना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय रेट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी आपको क्या करना था, कोनिकल टेंट बनाना था तो भी कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ पर भी आपको क्या करना था, लेंथ आपको ढूंढना था, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरियाज ऑफ द टेंट हमने ढूंढा। सो तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1155. That is the cost for whitewashing.